सो लास्टली हमने दो कीवर्ड देखे, स्टैटिक और दूसरा कीवर्ड था कॉन्स्ट। तो ऐसा देखा कि स्टैटिक कीवर्ड कहाँ का यूज हो सकता है, बनाते वक्त ऐसी बहुत सारी सिचुएशन होती है जहाँ पे रियल लाइफ सिचुएशन को कंप्यूटर में डालने के लिए आपको डिफरेंट टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ती है, फंक्शनलिटी की। है कॉन्स्ट कीवर्ड या तो वेरिएबल के आगे लिखते हैं, तो उसका इफेक्ट क्या होता है? वी हैव सीन दैट प्रोग्राम्स, राइट? आई एम जस्ट, वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। अगर वेरिएबल के आगे लिखा तो वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। अच्छा, फंक्शन के आगे लिखा तो वेरिएबल की वैल्यू को चेंज, वो फंक्शन उस क्लास वेरिएबल की वैल्यू को चेंज नहीं कर पाएगा। दो चीजें देखी हमने, कॉन्स्ट कीवर्ड, एक तो वेरिएबल के आगे लिखते थे हम लोग, નવા એડમિશન આવેલા હા એમાંથી એક સ્ટુડન્ટ અહીંયા ગાડી છે, બાકી બે ઓનલાઈનમાં છે. હા कुछ नहीं है, लखी नाखવાનું એટલે એટેન્ડન્સ ની વાત કરો છો? અટેન્ડન્સ નવા માટે students. તમને જસ્ટ ઇન્ફોર્મેટિક એ લોકો હા હા, અચ્છા એવું છે. ઓકે, ન્યુ એડમિશન ઇન ધીસ સેમેસ્ટર ઓનલી. સારું. અચ્છા, મને એવી માહિતી મળી કે ઓનલાઈન ક્લાસમાં જે અત્યારે બેઠા છો એમાં બે નવા એડમિશન્સ છે, એટલે બંને અત્યારે હાજર છો ઓનલાઈનમાં? યસ સર. હા, એક તો બોયઝ માંથી છે અને એક ગર્લ માંથી છે. બોયઝ માંથી 136 તમે બોલ્યા. અચ્છા, 136 શું છે આપનું નામ, ફૂલ નેમ? હર્ષ કેવડિયા. હર્ષ કેવડિયા 136. અચ્છા, અને ગર્લ્સમાં બોલો. ઓકે, હર્ષિતા ચૌધરી, બંને એચ ઉપર જ છે. ફાઇન. વી હેવ વન મોર સ્ટુડન્ટ. અચ્છા, મેં સેમ 3 માં જોઈન કર્યું છે. તો એના પહેલા, એટલે જસ્ટ ટુ સ્ટાર્ટ બિફોર ઇટ, જે સેમ 3 માં તમે જોઈન કર્યું એટલે સેમ 1 2 ના બધા સબ્જેક્ટ ક્લિયર, રાઈટ? સી પ્રોગ્રામિંગના કન્સેપ્ટ ક્લિયર. Yes, વચ્ચે sir. વચ્ચે અહીંયા એવું થશે કે હું સી પ્રોગ્રામિંગના કન્સેપ્ટ પૂછીશ અથવા તો ઇન્ફોર્મ કરીશ, એટલે તમારે પેલું શું કહેવાય કે 1 + 1 2 મેચ થઈ જવું જોઈએ. કોઈ ડાઉટ હોય તો સ્ટોપ કરીને પૂછી લઈ શકાય. ઓકે, ક્લિયર બધાને? આપણે C++ લેંગ્વેજનો યુઝ કરીને ઓસીપી કન્સેપ્ટ જોઈ રહ્યા છીએ. ઇન ધેટ વી હેવ સીન વેરિયસ, અને એમાં સૌથી અત્યારે લાસ્ટમાં પોઈન્ટ વાત કરી હતી આપણે, there are two keywords that C++ language provides. One is const keyword, very useful keyword. While doing programming, अगर आपको ऐसा है कि आपका कोई वेरिएबल है, उसका वैल्यू फिक्स कर देना है, जैसे बैंक का कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हो, भाई बैंक में मिनिमम बैलेंस 1000 ફિક્સ હોય, કોઈ પણ સેવિંગ્સ એકાઉન્ટ ખોલાવો મિનિમમ બેલેન્સ 1000 જ હોય. ક્યારેક બેંક પોલિસી ચેન્જ કરે અને 1000 ના બદલે 2000 કરશે. અધરવાઇઝ જેટલા પણ નવા અકાઉન્ટ બને, જેટલા અકાઉન્ટનું ડેલી બેલેન્સ ચેક કરવાનું હોય તો એમાં તો 1000 ફિક્સ જ રહેવાનું. तो ये कॉन्स्ट जैसा कंसेप्ट हो गया कि एक बार आप कोई क्लास बना रहे हो बैंक का और उसके अंदर ये वेरिएबल ले लिया मिनिमम बैलेंस, ये वाला वेरिएबल उसका वैल्यू क्या होगा 1000 फिक्स. तो वो कॉन्स्ट कीवर्ड से उसको फिक्स कर सकते हो. कोई भी फंक्शन, कोई भी दूसरा क्लास कहीं से भी ऑब्जेक्ट के थ्रू उसकी वैल्यू चेंज नहीं कर पाएगा. तो रियल वर्ल्ड में भी ये कंसेप्ट यूजफुल है इस तरह से. I have shared both the screens, okay, and let us see first of all a very quickly glimpse of what last we have completed. It is taking time to show. આપણે આને ઓપન વિથ એડોપ કરીએ, ફાસ્ટ થશે. Yes, this is our subject syllabus. OCP CC 203 એમાં યુનિટ 1 કમ્પ્લીટેડ. યુનિટ 2 ની અંદર આપણે આજે પહેલો પોઈન્ટ છે મેમ્બર ફંક્શન્સ એન્ડ ડેટા મેમ્બર્સ. આ ટોપિકમાં હવે લાસ્ટ એક નાનકડો પોઈન્ટ જોઈને પછી આપણે આના ઉપર જવાનું છે. इंटरेस्टिंग कीवर्ड फ्रेंड फंक्शन. जैसे हमारे रियल लाइफ में भी सर्टन अवर थिंग्स आर एक्सेसिबल टू अवर फ्रेंड्स ओनली, नॉट टू द जनरल पब्लिक. આપણે જનરલ પબ્લિકમાં તમારા બે ચાર પોઈન્ટ્સ કોઈ શેર કરતા નથી,
એ આપણે ફ્રેન્ડ સુધી લિમિટેડ રાખીએ. એવી રીતે આમાં પણ એવું છે કે પ્રાઇવેટ વેરિएबल्स ऑफ अ क्लास नॉट अलाउड टू एनीवन, राइट? कोई भी क्लास का वेरिएबल प्राइवेट होता है तो क्लास के बाहर अलाउड होता है, नॉट अलाउड. आप उसका ऑब्जेक्ट बनाओ क्लास का और यूज करने जाओ तो भी ना बोल देगा कि प्राइवेट वेरिएबल अलाउ नहीं होता है. फ्रेंड कीवर्ड से आप किसी फंक्शन को या किसी क्लास को, आपके एग्जिस्टिंग क्लास को फ्रेंडशिप बना सकते हो, तो फिर वो आपके प्राइवेट मेंबर्स एक्सेस कर सकता है. तो ये रियल लाइफ सिचुएशन जैसा ही हुआ. तो कोई क्लास, उसके डेटा मेंबर्स अगर प्राइवेट है तो नॉट एक्सेसिबल आउटसाइड क्लास. सिचुएशन फ्रेंड कीवर्ड से किसी फंक्शन को या तो किसी क्लास को आप अपने एग्जिस्टिंग वाले क्लास के फ्रेंड बना सकते हो. एंड इफ अ गिवन फ्रेंडशिप दे दिया तो फिर प्राइवेट मेंबर्स वहां पे भी यूज हो सकते हैं. तो जहां पे ओसीपी आपको एक जगह पे ब्लॉक कर देता है कि प्राइवेट कीवर्ड यूज किया तो नॉट अलाउड आउटसाइड, सामने एक आपको रास्ता भी खोल दिया, एक गेट ओपन कर दिया कि अगर फ्रेंड कीवर्ड यूज किया है तो अलाउड. क्योंकि रियल लाइफ सॉफ्टवेयर में ऐसा नहीं होता एक बार कि एक चीज ब्लॉक कर दी मतलब ब्लॉक ही कर दी. गिवन अ सिचुएशन वो ब्लॉक वाली चीज को यूज भी करना होता है. तो इसलिए आपको ये फ्रेंड कीवर्ड दिया है. तो फ्रेंड फंक्शन एंड फ्रेंड क्लास, ये दोनों पॉइंट देखेंगे हम. उसके पहले ये मेंबर फंक्शन का मैं लास्ट एक प्रोग्राम छोटा सा है वो क्लोज करता हूं. डेटा मेंबर्स ये सारे हमने अभी बात की. कॉन्स्ट कीवर्ड था. दूसरा एक स्टैटिक यूज किया था हमने लास्टली. अभी स्टैटिक कीवर्ड क्या करता है, कोई बताएगा? अगर लास्टली प्रोग्राम देखा था हमने स्टैटिक का, वो फंक्शन या वेरिएबल को शेयर करता है. करेक्ट. आंसर ऐसा मिला, स्टैटिक कीवर्ड जो है वो अगर हम फंक्शन में या वेरिएबल में लगाते हैं तो उसकी एक ही कॉपी क्लास लेवल पे मेंटेन होती है और बाकी सारे ऑब्जेक्ट उसको शेयर करते हैं. नॉर्मली क्लास के मेंबर्स, फिर वो फंक्शन हो या वेरिएबल हो, वो जितने ऑब्जेक्ट बनाओगे सबको इंडिविजुअल कॉपी देता है. बट स्टैटिक लिखने से उसकी एक ही कॉपी क्लास लेवल पे मेंटेन होती है और वो हर एक ऑब्जेक्ट को इंडिविजुअल कॉपी नहीं दी जाती, मतलब नॉट सेपरेट मेमोरी गिवन. तो स्टैटिक कीवर्ड से इट इज शेयर्ड बाय ऑल. उसका एक प्रोग्राम देखा था हमने. हाँ हाँ यस, एनकैप्सुलेशन. हाँ हाँ, उसमें भी ये कीवर्ड होता है फंक्शनलिटी के लिए. फंक्शनलिटी वही रहती है, उसकी सिंटैक्स अलग हो सकती है ना. अच्छा, ऑनलाइन से क्वेश्चन ऐसा पूछा गया कि ओसीपी के जो कंसेप्ट है वो क्या कंसेप्ट अलग लैंग्वेज में भी मिलते हैं? जावा है, पाइथन है, ऐसी अलग अलग लैंग्वेज है, उसका यूज करके भी यही कंसेप्ट बता सकते हो. में भी क्लास बनता है, वहां पे भी फ्रेंड फंक्शन, मेंबर फंक्शन सब कुछ है. पाइथन में भी सेम है, सिर्फ लिखने का सिंटैक्स अलग अलग है. ओके फाइन. जूनो प्रोग्राम ओपन करूं, हमारे पास याद थे 25 અને 26 બે प्रोग्राम बनाया था. 26 was the last one. ओके हाँ, ये रहा. इट रिटेन्स प्रीवियस वैल्यू, ओल्ड वैल्यू कैरी फॉरवर्ड. ये रहा ईच ऑब्जेक्ट शेयर द वेरिएबल. ये स्टैटिक की बात चल रही है, बराबर है. ये रहा इंप्लीमेंट स्टैटिक मेंबर वेरिएबल. जस्ट टू रिवाइज दिस फास्ट, हमने एक काउंट नाम का वेरिएबल लिया था, उसके आगे स्टैटिक लिख दिया. ये वेरिएबल हर एक ऑब्जेक्ट को नहीं मिलेगा पर एम्प्लॉय क्लास के लेवल पे वो मेंटेन रहेगा. तो नीचे हमने उसका ऑब्जेक्ट बनाया, ये रहा E1 E2 E3. ये तीन ऑब्जेक्ट को क्लास के बाकी के वेरिएबल मिलेंगे. कौन कौन से वेरिएबल थे बाकी के? एम्प्लॉय नंबर एंड सैलरी, यू कैन सी. तो एम्प्लॉय नंबर ये वाला वेरिएबल एंड सैलरी, मतलब ये वेरिएबल E1 के अलग, E2 ऑब्जेक्ट के अलग, E3 ऑब्जेक्ट के अलग अलग होंगे, सबके अलग अलग होंगे. बट ये काउंट वाला वेरिएबल जो है वो एक ही रहेगा और ये तीनों ऑब्जेक्ट उसको शेयर करेंगे. अगर E2 वाले ऑब्जेक्ट ने यूज किया तो E1 वाले ऑब्जेक्ट के थ्रू अगर उसकी वैल्यू चेंज की है तो पुरानी वैल्यू वो होल्ड करेगा, रिटेन करेगा, और नए वाले को पुरानी ही वैल्यू मिलेगी, वहां से आगे जा सकता है. तो ये भी एक पॉइंट लिखा था हमने यहाँ पे, बराबर. तो हाँ, तो हमने इसमें क्या किया है, एड ईएमपी नाम का फंक्शन है. वेरिएबल तो स्टोर करवा देते, काउंट को प्लस प्लस किया है. तो काउंट वेरिएबल की पुरानी जो भी वैल्यू होगी उसको प्लस प्लस कर दो. जब भी ये फंक्शन कॉल होगा एड ईएमपी, तो वहां पे ये प्रोसेस हो जाएगी. अब नीचे हम कॉल कर रहे हैं उसको,
ये रहा, ये पहली बार कॉल कर रहे हैं तो उसमें ये दोनों आर्ग्यूमेंट पास होगी, वेरिएबल की वैल्यू सेट होगी, प्लस प्लस काउंट प्लस प्लस हो जाएगा वहां पे भी। ये दूसरी बार कॉल कर रहा हूं तो यहाँ पे भी काउंट प्लस प्लस होगा, जो पुराना काउंट का वेरिएबल का वैल्यू था उसके अंदर +1 होगा, राइट, इस तरह से। एंड दिस इज थर्ड वन, जितनी बार जितने ऑब्जेक्ट बनाओगे आप उतनी बार वो काउंट की वैल्यू प्लस प्लस होगी। अच्छा, सेकंड पॉइंट, ये पॉइंट था, स्टैटिक वेरिएबल को इनिशियलाइज करना पड़ता है, तो इसका मतलब इस तरह से लिखो, टाइप और वेरिएबल नेम इक्वल टू 0 लिखने की जरूरत नहीं है, डिफॉल्ट वैल्यू उसकी 0 होती है, पर ऐसे लिख के उसको एलोकेट करो, मेमोरी स्पेस एलोकेट करो और उसको 0 वैल्यू स्टोर करवाओ, तो इसको बोलते हैं इनिशियलाइज, ये करना पड़ेगा। आज हम देखेंगे कि कोई स्टैटिक वेरिएबल वो स्टैटिक मेंबर फंक्शन होगा उसके अंदर अलाउ होता है, वो पॉइंट आज देखना है हमको। एक मिनट, ऑनलाइन में कोईનું માઇક મ્યુટ અનમ્યુટ થઈ ગયું છે, ગ્રુપમાં માઇક મ્યુટ કરો, હા ફાઇન, ચલો વી કેન કન્ટિન્યુ। આ તો પ્રોગ્રામ જસ્ટ તમને ફટાફટ રન કરીને બતાવું, કમ્પાઇલ થઈ ગયો, રન થાય છે, પહેલો ઓબ્જેક્ટ બન્યો, જે ઓબ્જેક્ટ ક્રિએટ થયો એડ emp, એમાં કાઉન્ટ પ્લસ પ્લસ કરાયા પછી આપણે નીચે ડીસી આઉટ કરાયું હતું, તો કાઉન્ટ વેરિયેબલની વેલ્યુ મૂકી અને બાજુમાં મેસેજ મૂક્યા એમ્પ્લોયી એડેડ, તો 1 એમ્પ્લોયી થઈ ગયું, એટલે કાઉન્ટની સ્ટાર્ટિંગ વેલ્યુ કેટલી હશે, इनिशियल प्रोग्राम में 0 थी, 0 का 1 बना दिया, वैल्यू सेट हो गई, डिस्प्ले हो गया। दूसरा ऑब्जेक्ट बना E2, E2 के अंदर भी वही मेथड कॉल हुई एड emp वाली, तो वेरिएबल की वैल्यू तो सेट हो गई, एम्प्लॉय नंबर सैलरी, बट काउंट का पुराना जो वैल्यू था क्योंकि वो शेयर्ड है, तो जब इसने यूज किया तो पुरानी वैल्यू के साथ वो यूज हुआ, ओके, और उसकी वैल्यू भी डिस्प्ले हो गई। थर्ड ऑब्जेक्ट बना तो काउंट का जो 2 वाला वैल्यू था वही कैरी फॉरवर्ड हुआ, तो उसका 3 हुआ। तो स्टैटिक कीवर्ड का जो वेरिएबल बनाएंगे उसका ये फीचर याद रखना है कि वो डिफॉल्ट वैल्यू 0 होती है और वो वेरिएबल शेयर होता है, मतलब कोई नया ऑब्जेक्ट उसको यूज करेगा तो उस वेरिएबल की जो पुरानी वैल्यू पड़ी होगी वहीं से वो आगे आएगा, इट विल रिटेन द ओल्ड वैल्यू। बराबर છે, આટલું ક્લિયર છે બધાને? ફાઇન, ઓકે, હવે હું આને જસ્ટ સેવ એઝ કરું છું। આજે એક નાનકડો पॉइंट જોઈ લેવો છે, પછી આપણે મેટર ક્લોઝ કરીએ, નવું ચાલુ કરીએ फ्रेंड वालू। पॉइंट ऐसा है कि स्टैटिक मेंबर फंक्शन था, हमने बात बताई थी, फंक्शन भी होता है स्टैटिक, (27) के नाम से मैं उसको सेव एज कर रहा हूं नए नाम से, एंड लेट अस सी प्रोग्राम टू इंप्लीमेंट। This is our definition. સેકન્ડ આખું નવું લઈશ અત્યારે તો પછી વધારે થશે, પણ અત્યારે મારી પાસે એક પોઈન્ટ એ છે, સ્ટેટિક ફંક્શન can use static members only, non-static members are not allowed in static function। राइट नाउ तो देखो एड emp फंक्शन स्टैटिक है कि नॉन स्टैटिक है? नॉन स्टैटिक કહેવાય, બરાબર ને? જો સ્ટેટિક હોત ને તેની એન્ડમાં આપણે સ્ટેટિક કીવર્ડ લખ્યો હોત, એટલે આ નોન સ્ટેટિક છે। अच्छा, આ ફંક્શન પણ તો રેગ્યુલર ફંક્શન કહેવાય અથવા નોન સ્ટેટિક કહેવાય। રેગ્યુલર ફંક્શનમાં તો બધું અલાઉડ હોય, બંને ટાઈપના વેરિયેબલ। જુઓ આ વેરિયેબલ કેવા છે? નોન સ્ટેટિક છે, જ્યારે આ વેરિયેબલ કેવો છે? स्टैटिक है, मतलब रेगुलर फंक्शन के अंदर तो सारे वेरिएबल अलाउड है। अगर मैं कोई
हाँ यस स्टैटिक फंक्शन एक ज कॉपी હોય બધા ઓબ્જેક્ટ में શેર થાય कॉपी ना बने બોલો એક ફંક્શન છે ટોટલ એમ્પ્લોય એની પાછળ મેં સ્ટેટિક કીવર્ડ લખ્યો એનો મતલબ શું થયો સ્ટેટિક ફંક્શન બન્યો अच्छा આપણે આગળ લખી શકીએ સ્ટેટિક વોઇડ हाँ चलो આગળ લખીએ सॉरी कॉन्स्ट પાછળ લખાય છે स्टैटिक આગળ લખાય છે ये स्टैटिक फंक्शन है अगर इसमें मैं कोई नॉन स्टैटिक लेता हूं सी आउट तो हाँ तो एरर बताएगा बराबर है मैं एम्प्लॉय नंबर को प्रिंट कर रहा हूं एम्प्लॉय नंबर तो मेरा अगर कोई फंक्शन स्टैटिक लिखा हुआ है तो उसके अंदर आप नॉन स्टैटिक वाली चीजें यूज नहीं कर सकते ये उसने लॉक रखा है अगर इसको कंपाइल करता हूं मैं यू कैन सी द एरर क्या लिखा है अभी यूज विदाउट एन ऑब्जेक्ट हाँ एक मिनट एम्प्लॉय नंबर कैन नॉट बी यूज विदाउट एन ऑब्जेक्ट ऑलरेडी EMP तो है हमारे पास राइट मुझे स्टैटिक कह रही थी टोटल EMP वाला है ना तो मुझे नीचे कॉल करना है तो मैं कैसे कॉल करूंगा आई जस्ट रिमूव दिस फाइन POT EMP हाँ फंक्शन इज देयर सेव कंपाइल मेंबर EMP NO कैन नॉट बी यूज्ड विदाउट एन ऑब्जेक्ट इसको ऑब्जेक्ट के सिवा यहाँ पे मतलब विदाउट ऑब्जेक्ट यूज नहीं कर सकते हाँ और या इसके अंदर एम्प्लॉय नंबर या तो दूसरा कौन सा वेरिएबल था सैलरी ये वेरिएबल यहाँ पे अलाउ नहीं करेगा अगर मैं इसको काउंट नाम का वेरिएबल प्रिंट करवाता हूं जस्ट फॉर अ मोमेंट उसको प्रिंट करवा रहा हूं मैं काउंट का तो काउंट वेरिएबल एरर नहीं यहाँ पे या सिर्फ मैं एम्प्लॉय नंबर का एरर दिया इसको मैंने कमेंट कर दिया नॉट अलाउड यहाँ लिख देता हूं नॉट अलाउड बराबर है एम्प्लॉय नंबर नॉट अलाउड बिकॉज इट इज नॉन स्टैटिक बट काउंट अलाउ हो गया अल्टर F9 देखो कंपाइल हो गया पूरा इसको नीचे कॉल कर रहा हूं मैं टोटल EMP तो फंक्शन कॉल होगा उसकी वैल्यू डिस्प्ले होगी सब कुछ होएगा कंपाइल एंड एग्जीक्यूट वन एम्प्लॉय एडेड पहला मेथड था ये देखन एंड उसका काउंट ये रहा वन काउंट मतलब वो अभी तीसरा मेथड कॉल किया टोटल EMP मेथड कॉल किया तो उसके अंदर सी आउट की वैल्यू उसने काउंट वेरिएबल की वैल्यू बता दी एक छोटा सा पॉइंट था कि स्टैटिक फंक्शन कैन यूज स्टैटिक मेंबर्स ओनली उसके अंदर नॉन स्टैटिक यूज नहीं कर सकते ये बताने के लिए आपको एग्जांपल दिया बोलो समझाओ एग्जांपल आप पाછું અહીંયા સેવ થતું નથી મારે अभी तो सेव किया था F2 यस नीचे हाँ तो कमेंट भी किया था अभी शायद वो फाइल सेव नहीं हुई सेव यस થોડોક રેમનો પ્રોબ્લેમ હોઈ શકે फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड यस काउंट 1 बतावे છે मतलब ये एक छोटा सा पॉइंट था राइट अगर ये काउंट वाला वेरिएबल स्टैटिक है तो ही वो ऐसी कोई स्टैटिक मेथड के अंदर यूज होगा स्टैटिक फंक्शन यूज होगा और दूसरा ये ये जो स्टैटिक फंक्शन था इसका क्लास लेवल पे एक ही कॉपी रहेगा जितने ऑब्जेक्ट बनाओगे सबको ये शेयर होगा यहाँ पे उसकी इफेक्ट नहीं आएगी लेकिन अगर आपने दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया E2 उसमें भी ये फंक्शन कॉल करो तो ये फंक्शन E2 की अपनी मेमोरी से कॉल नहीं होगा
क्योंकि E1 E2 E3 ये ऑब्जेक्ट पे ये फंक्शन है ही नहीं, ये फंक्शन तो क्लास लेवल पे है। ठीक है, इट इज शेयर्ड बाय ऑल ऑब्जेक्ट्स। બોલો આટલું સમજાય બધાને? તમને બધાને ખ્યાલ આવે છે? આ સાઈડ ઓનલાઈન ઓફલાઈનમાં પણ બધાને ક્લિયર થઈ ગયો આ પોઈન્ટ? ઈઝી છે. સ્ટેટિક કીવર્ડ લખ્યો હોય તો એ ફંક્શન અંદર જે સ્ટેટિક વેરિયેબલ હોય તો જ વપરાય, નોન સ્ટેટિક આપણને મૂકી શકે નહીં, એમાં એરર બતાવે. નાઉ વી વિલ સી ધેટ. હાજી, અચ્છા, સ્ક્રીનશોટ. હા, ઓનલાઈન ગ્રુપમાં જે લોકો સ્ક્રીનશોટ લો છો એ પછી અહીંયા જે ઓફલાઈન બેઠા છે એ લોકોને આપી દેજો. એક મિનિટ. ફાઇન, પહેલો સ્ક્રીન ઓવર થઈ ગયું બધાને? Yes, ઓકે, ચલો સેકન્ડ લઈએ. સ્ક્રીન, સેકન્ડ સ્ક્રીનમાં વોઇડ શો EMP. हाँ बोले, एक मिनट. हाँ, फाइल तो भेजने वाला हूँ. उसके पहले किसी को रीड करना होता है तो स्क्रीनशॉट के लिए. चलो हाँ, અને લાસ્ટ પેજ કઈ છે ને, લાસ્ટ પેજમાં મેથડ કોલ કરી છે અને મેઇન ઓવર. ડન. ચલો આજે એક નવો પોઈન્ટ જોઈ લઈએ ફટાફટ. હવે ફ્રેન્ડ ફંક્શન અને એના ફીચર શું છે. સેવેસ કરું છું નવા નામે PRG28 અને એમાં બાકી બધું આપણે રિમૂવ કરી નાખીએ. આજે સ્ટ્રક્ચર લેવા પૂરતું મેં ફાઇન. हाँ, बराबर. પ્રોસીજર શું લખ્યું હતું? પ્રોસીજર. હા, બરાબર બરાબર. ઓકે ઓકે, અંડરસ્ટુડ ધ ક્વેશ્ચન. હા, અંડરસ્ટુડ ધ ક્વેશ્ચન. જો ક્વેશ્ચન એવો પૂછ્યો કે પીઓપી અને ઓપી આ બે કન્સેપ્ટ હતા ને, તો એક સ્ટુડન્ટે રીડ કર્યું ગારે ઓનલાઈનમાં ક્યાંક વેબસાઇટ ઉપર કે પીઓપી છે એ અનરિયલ લાઈફ જોડે કનેક્ટ કરે અને ઓપી ઓબ્જેક્ટ ઓરિએન્ટેડ પ્રોગ્રામિંગ એ રિયલ લાઈફ જોડે કનેક્ટ કરે છે. ધીસ ઇઝ ધ ક્વેશ્ચન. નાઉ ધ ક્વેશ્ચન ઇઝ કે અનરિયલ લાઈફ એટલે શું? રિયલ લાઈફ એટલે આપણે જે સ્ટુડન્ટ ક્લાસ, એમ્પ્લોય ક્લાસ, બુક નાનો ક્લાસ છે, વ્હીકલનો ક્લાસીસ છે, આ બધા ક્લાસીસ રિયલ લાઈફમાં જોવા મળે. એને તમે સોફ્ટવેરનો પ્રોગ્રામ બનાવો તો ઓપી હેન્ડલ કરે. અનરિયલ એટલે પ્રોસિજર ઓરિએન્ટેડ પ્રોગ્રામિંગ. એની અંદર રિયલ લાઈફમાં જે બનતા જે ઇન્સિડન્સ એ પ્રમાણે ના હોય. મેથેમેટિકલ કેલ્ક્યુલેશન્સ અને સ્ટેટિસ્ટિકલ કોમ્પ્યુટેશન્સ એના માટેના જે ફંક્શન્સ જોઈતા હોય ને એને તમે પીઓપીમાં લઈ શકો. જેમ કે સ્ટાન્ડર્ડ ડેવિએશન ફાઇન્ડ કરવું છે, જેમ કે मीन मीडियन मोड फाइंड करवा છે, એવા બધા માટે તમે આમ जो स्टैटिस्टिकल और कंपटीशन टाइप की होती है वो अनरियल है, मतलब रियल लाइफ में उतना उसका डेली यूज नहीं होता, हम कनेक्ट नहीं कर सकते. તમે સવાર સાંજ લોગેરિથમના ટેબલ્સ યાદ હોય છે બધાને? log 5 ની વેલ્યુ કેટલી, log 7 ની વેલ્યુ કેટલી, log 5 3 ની વેલ્યુ કેટલી? આપણે વી ડોન્ટ યુઝ ઇટ ઇન ધ રિયલ લાઈફ, ડેલી લાઈફમાં. ડેલી લાઈફમાં જે યુઝ થાય, જેમ કે વ્હીકલ ક્લાસ, કે તમે વ્હીકલ ચલાવો છો, તમે પેમેન્ટ કરો છો તો પેમેન્ટ ઇઝ અ ક્લાસ. તમે ફ્રૂટ અને સબ્જી લો છો તો એનો ક્લાસીસ હોય છે.
तो कहने मतलब पीओपी जो है, प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, वो कोई एक ही प्रोसीजर करने के लिए, स्पेशलाइज के लिए का यूज होता है, बट रेयरली यूज्ड। ओपी जो होता है वो रियल लाइफ, वो अनरियल था। अनरियल मतलब जो इसमें कंप्यूटर लैंग्वेज बोलते हैं हाइपोथेसिस बोलते हैं। हाइपोथेसिस मतलब एजम्पशंस, वो फैंटेसी एजम्पशन बोलते हैं ना, अगर ऐसा होता तो ऐसा करते, ऐसे एजम्पशंस को वर्कआउट करने के लिए पीओपी होता है। इट इज अनरियल। ओके। और ओपी जो है ना वो रियल लाइफ प्रॉब्लम के लिए, रोबोटिक आर्म कैसे मूव होगा, कोई छोटा सा 4 व्हीलर वाला व्हीकल है तो वो कैसे सेंसर सेंस करके आगे जाएगा, करना है तो करंटली जियोग्राफिकल लोकेशन पे क्लाउड की सिचुएशन देख के क्या फोरकास्ट कर सकते हो। ये सारे रियल लाइफ के प्रॉब्लम्स है, उसको सॉल्व करने के लिए ओओपी बेस्ड, तो वो रियल लाइफ के लिए है। फाइन, ओके। चलो अपने आप पॉइंट में आगे आइए। फ्रेंड कीवर्ड, ग्लोबल आइसोलेटेड फंक्शन कैन यूज of a class to friend keyword। ये पहला एग्जांपल जैसे कैसे होता है, जैसे कि अगर मैंने कोई क्लास लिया, इजी कॉन्सेप्ट है। एक वेरिएबल लो छू, वेरिएबल प्राइवेट कहवाय कि नहीं? અત્યારે जो अगर आप कुछ डिक्लेयर नहीं करते हो तो क्या हो गया? प्राइवेट हो गया, प्राइवेट हो गया। अगर आप उसको मेन के अंदर सिंपल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया और मैं यहां पे ऐसे कुछ मैसेज लिखता हूं, ऑब्वियसली अलाउ नहीं करेगा। S1 के X के अंदर वैल्यू इनपुट करो, ऐसा मीनिंग हुआ कि नहीं? तो हाँ, अब ये तो बोलेगा कि प्राइवेट एक्सेस है, F2 अल्टर F9, एरर दे दिया। सिंपल क्लास का X वेरिएबल नॉट एक्सेसिबल, किस लाइन पे एरर है? देखो इसी लाइन पे एरर है, कर्सर वहां पे ब्लिंक कर रहा है। इसका मतलब S1 डॉट एक्स प्राइवेट वेरिएबल नॉट अलाउड आउटसाइड क्लास। ये जो उसका परमिशन का फीचर था वो ये है। अगर उसको मैं कोई फंक्शन में यूज करूं तो भी अलाउड नहीं होना चाहिए, ऑब्वियसली। मेन भी खुद एक फंक्शन ही है ना। अगर मैं कोई ग्लोबल फंक्शन लिखता हूं, जैसे यहां पे लिखा मैंने वॉइड चेंज, या तो लिखो सेट, चलो ना हमको ये तो ग्लोबल फंक्शन हो गया। बट अगर मुझे एक्स की वैल्यू को कुछ वैल्यू स्टोर करवानी है, हाँ एक्स प्लस प्लस करेंगे तो भी अलाउ तो नहीं करेगा, पर यहाँ पे तो एक्स यूज ही नहीं कर पाएगा। ऑब्जेक्ट का है, कौन से क्लास का है, कहाँ पता है? तो आपको उसके अंदर क्लास का ऑब्जेक्ट पास करना पड़ेगा। पर पहला ये पॉइंट बताता हूं, अभी मुझे ये क्वेश्चन सॉल्व करना है कि एक्स वेरिएबल की वैल्यू सेट करनी है, तो कैसे कर सकता हूं मैं? नहीं, प्राइवेट ही रखना है। तो ये सॉल्यूशन यहाँ तो काम नहीं करेगा। एक ये है कि यहाँ पे अगर पब्लिक करके मेथड बना दो, यहाँ पे वॉइड सेट, या तो इनपुट, जो भी आप नाम दो सकते हो। अगर मैं ये वाला आपका जो कोडिंग था जो इनपुट कर रहा है, ये कोडिंग यहां से हटा दूं और वो अगर फंक्शन में डाल दूं तो बोलो चलेगा? फंक्शन इज पब्लिक, पब्लिक फंक्शन कैन एक्सेस प्राइवेट वेरिएबल, यस और नो? क्लास के अंदर ही है ना अभी तो, अलग हो गया। सिर्फ S1 लिखने की जरूरत नहीं होगी, बिकॉज क्लास किसी ऑब्जेक्ट को बिलोंग करता है नहीं। क्लास तो डिजाइन होती है, डिजाइन तो जनरल होनी चाहिए, एक्स वेरिएबल तो जनरल होना चाहिए, बोले यहाँ पे सिर्फ एक्स आएगा। सकते हैं S1 तो कब क्रिएट हुआ? मेन में क्रिएट हुआ। जब क्लास को डिजाइन किया तब पता था कि S1 है कि S2 है कि क्या है, पता नहीं था। भी ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं लिखते डायरेक्ट, आपको सिर्फ जनरल वेरिएबल लिखना होता है। तो ये इनपुट नाम का मेथड है। अब मेरे पास एक रास्ता मिल गया, एक टेक्निक हो गया। मैं कैसे कर सकता हूं? S1 डॉट
बोलो समझायो। मेन के अंदर ये रहा, मेन के अंदर S1 ऑब्जेक्ट का एक्स वेरिएबल एक्सेस नहीं कर सकता था, पर मेन के अंदर मैं इनपुट नाम की मेथड तो कॉल कर सकता हूं। मेथड पब्लिक है कि नहीं? अब ये पब्लिक मेथड के थ्रू प्राइवेट वेरिएबल सेट हो जाएगा। अगर आप इसको और एक मेथड ले लो यहां पे, void show, सॉरी, अगर ऐसा लिया तो भी चलेगा, चलो लो ना, मेरे पास बहुत रस है, राइट? इसका बॉडी पार्ट में बाहर दे रहा हूं। अब बराबर से सर स्कोप है ना सर। बराबर से ऑनलाइन में साथ पे जवाब पे हो। ये क्लास के अंदर मैंने सिर्फ डिक्लेयर किया, मैं क्लास के बाहर ये डिफाइन कर रहा हूं। क्या ये बराबर है कि इसमें कुछ चेंज करते होते हैं? ओके या ऑनलाइन मध्ये 1 मिनिट स्टॉप था, તમારા માંથી કોઈ એક આન્સર આપો। આ કોડિંગ બરાબર છે? નોર્મલી ક્લાસનું ડેફિનેશન, ફંક્શનનું ડેફિનેશન ફંક્શન સાથે હોય કે નહીં? यस सर, वो અત્યારે તો ક્લાસમાં नॉर्मली શું છે, सही ખાલી है। डिक्लेरेशन है। हाँ, यहाँ पे सिर्फ उसका डिक्लेरेशन है, ये क्लास के बाहर में उसको डिफाइन कर रहा हूं। ऐसे लिखूंगा तो चल जाएगा? શું લખવું છે, શું ચેન્જ જોઈએ આમાં? सिंपल और वो स्कोप ऑपरेटर फिर सो यस, आ Scope शो resolution। फंक्शन, एग्जैक्टली ये शो फंक्शन कौन से क्लास का है बताना पड़ेगा कि नहीं? आप ग्लोबल जगह पे हो, ये शो फंक्शन इट बिलोंग्स टू विच क्लास, ये बताना पड़ता है। मतलब आगे क्या लिखना पड़ेगा? सिंपल क्लास का। बोलो समझाए बद्धा ने? आज जुनो, हाँ, ये पुराना कंसेप्ट था। क्लास का फंक्शन अगर क्लास के बाहर हम डिफाइन करते हैं, ये डेफिनेशन है, राइट? तो उसको फंक्शन को बताना पड़ेगा वो किस क्लास को बिलोंग करता है, यूजिंग स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। याद आ गયું? સ્કોપ ઓપરેટર બીજો કન્સેપ્ટ છે, પણ ચલો આ તો આપણે ત્યારે ચાલુ કર્યું એટલે આમાં લઈ લીધો। અહીંયા હું હવે સી આઉટ લખી દઉં છું, સી આઉટ વેરિયેબલ ડિસ્પ્લે કર્યો એટલે મારે અહીંયા નીચે યુઝ કરવો તો શું નામ હતું? શો। આ ઇનપુટ થશે, આ શો થશે। નાઉ ઇટ વિલ ડુ અલ્ટર F9, સેવ કરવા દો, કંટ્રોલ F9, वैल्यू फॉर एक्स, बराबर है? यहां तक तो सही है। क्लास का प्राइवेट वेरिएबल डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते थे, तो हमने क्लास में क्या कर दिया? पब्लिक मेथड बना दी, पब्लिक फंक्शन बना दिया, एक के अंदर इनपुट किया, दूसरे फंक्शन में डिस्प्ले करवा दिया। तो प्राइवेट वेरिएबल क्लास के अंदर ही रहा ना। फिर भी कैन आई से दिस क्लास हैज दैट एक्स वेरिएबल राइट नाउ? क्लास के बाहर तो कहीं यूज ही नहीं हुआ। या नाउ द पॉइंट कम्स, ये जो है इसके अंदर अगर मैं x नाम की वैल्यू को प्लस प्लस करूं और सी आउट करूं, तो ये x किसका है बताना पड़ेगा कि नहीं? क्योंकि ये फंक्शन तो ग्लोबल है, उसको तो पता नहीं है कि ये x वेरिएबल कौन से का है। ये x वेरिएबल किसका है? सिंपल क्लास का। अब इसमें तो कोई क्लास यूज नहीं कर सकता मैं, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा मुझे? सिंपल क्लास का एक ऑब्जेक्ट लो, बराबर है? और ये जो ग्लोबल फंक्शन है उसको मेन में कॉल करवाओ। कॉल करवाते वक्त उसके ब्रैकेट में वो ऑब्जेक्ट पास कर दो। फिर जो ऑब्जेक्ट आएगा उसका एक्स वेरिएबल आप इंक्रीमेंट कर सकते हो, उसका एक्स वेरिएबल डिस्प्ले भी हो सकता है। बोलो थोड़ा समझाओ कहीं? रिपीट कर दो ना हाँ, सर। फिर से चेंज इज अ फंक्शन, इट टेक्स वन आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट सिंपल टाइप की है, सिंपल टाइप का एक ऑब्जेक्ट है। जैसे इंटीजर वेरिएबल एक्स आता है वैसे ये सिंपल क्लास का एक ऑब्जेक्ट आ गया, और जो भी ऑब्जेक्ट आएगा उसका एक्स वेरिएबल वो प्लस प्लस करता है, उसको डिस्प्ले कर रहा है। अब ये वाला चेंज वाला फंक्शन ग्लोबल फंक्शन है, उसके ब्रैकेट में नॉर्मली आप इंटीजर एक्स लिखते, इंटीजर या कोई भी आर्ग्यूमेंट, वैसे ये ऑब्जेक्ट भी आर्ग्यूमेंट ही हो गया। ऑल्सो वी कैन से कैन बी पास्ड एज आर्ग्यूमेंट। जैसे इंटीजर कैर लॉन्ग फ्लोट डबल टाइप आती है वैसे ये भी आ सकता है। क्लियर है इतना? फाइन। तो इसको कैसे मेन में कॉल करूं? फंक्शन कॉल किया और ब्रैकेट में ऑब्जेक्ट पास कर दिया। बोलो समझाएगा?
Yes, sir. ग्लोबल फंक्शन कॉल करवाया, फंक्शन के ब्रैकेट में एक ऑब्जेक्ट को आर्ग्यूमेंट पास कर दिया है. એક્ઝેક્ટલી ના કરી શકે કારણ કે ગ્લોબલ ફંક્શન અત્યારે આપણા સિમ્પલ વાળા ક્લાસનું ફ્રેન્ડ નથી. ग्लोबल फंक्शन जो है चेंज नाम का फंक्शन और सिंपल वाला क्लास, उसके बीच में भी कोई फ्रेंडशिप तो है नहीं. अगर फ्रेंडशिप होता तो वो प्राइवेट वेरिएबल यूज कर पाता. अगर फ्रेंडशिप नहीं है तो ये एक्स वाला वेरिएबल यहाँ पे भी अलाउड नहीं है. देखिए एरर આવી શું લખ્યું? સિમ્પલ ક્લાસનો એક્સ વેરિએબલ નોટ એક્સેસિબલ, એટલે પ્લસ પ્લસ લાઈન કરી ત્યાં મૂક્યું છે. આ બીજી એરર જો એને નીચે લાઈનમાં છે सी आउट में, ये दोनों लाइन के अंदर एरर बता रहा है. तो मतलब ऑब्जेक्ट बना के कोई ग्लोबल फंक्शन में पास भी कर दो तो भी वो ऑब्जेक्ट के थ्रू वो प्राइवेट वेरिएबल तो एक्सेस होता ही नहीं है. बोलो समझाયું બધાને? હવે અહીંયા આપણે કામમાં આવશે. વેરી ગુડ. અહીંયા હવે કામમાં આવશે. હજી કઈ એરર હતી એના સિવાયની? અચ્છા આ શું એરર છે? આ એરર શું કહેવા માંગે છે? પોઇન્ટર ઓબ્જેક્ટ ના કહેવાય, આને એવું કહેવાય કે ઓબીજે નામનો પેરામીટર તમે પાસ તો કર્યો पर फंक्शन में कहीं यूज ना करो. हाँ आपने पास तो कर दिया लेकिन फंक्शन के अंदर ये जो काम किया वो भी एरर बोल रहा है, ये भी और एरर बोल रहा है. तो पूरे बॉडी के अंदर ऑब्जेक्ट जो ओबीजे है उसका यूज हुआ? कुछ नहीं हुआ. मतलब मेन में से पास हो गया, बॉडी पार्ट में अंदर भी आ गया, लेकिन अंदर आने के बाद उसके ऊपर कुछ प्रोसेस नहीं हुआ. प्रोसेस नहीं हुआ इसलिए उसने वो एरर लिखी, इट इज नेवर यूज्ड. लास्ट वन, ओबीजे इज नेवर यूज्ड, अंदर यूज नहीं हुआ ऐसा बोल रहे हैं, क्योंकि बाकी के दो जगह पे अपने यूज किया था वो तो परमिटेड ही नहीं है. इसको परमिशन देने के लिए हमको मेन क्लास को बताना पड़ेगा, ये मेन सॉरी सिंपल वाले क्लास में बताना पड़ेगा यहाँ पे कि वॉइड चेंज ऐसा नाम का कोई फंक्शन है जो सिंपल क्लास का कोई ऑब्जेक्ट ले रहा है और ये फंक्शन मेरे क्लास में आ लाइन समझाई बधाने. क्लास सिंपल जो है उसके अंदर एक्स वेरिएबल प्राइवेट है, हम ऐसा उसको इन्फॉर्म कर रहे हैं कि एक चेंज नाम का फंक्शन है, उसके आर्गुमेंट में सिंपल क्लास का कोई ऑब्जेक्ट जा रहा है और ये फंक्शन किसका फ्रेंड हुआ? सिंपल क्लास का. बराबर ने? अभी वो चेंज वाला फंक्शन है उसको सिंपल क्लास का प्राइवेट वेरिएबल का परमिशन मिल गया. जो सेव करियो, बोलो एरर निकल गई क्लास के अंदर. हाँ हाँ यस बोलो, क्वेश्चन बोलो. समझाइए? तो फ्रेंड हमेशा आगे ही लिखना होगा ना? यस, फ्रेंड कीवर्ड हमेशा उसके आगे लिखा जाता है, फंक्शन के आगे लिखना है स्टार्टिंग में. बराबर? ओके सर. हाँ तो ये क्या किया हमने क्लास की डिजाइन के वक्त बता दिया कि अगर आपके पास कोई प्राइवेट वेरिएबल है, अगर आपके पास पब्लिक फंक्शन है और एक पब्लिक फंक्शन है आपके पास, साथ साथ में आपके पास ये जो है फंक्शन, ये चेंज वाला फंक्शन, क्या ये फंक्शन क्लास का खुद का अपना है? सर वो ग्लोबल है. ये क्लास का फंक्शन तो है नहीं, राइट? ये ग्लोबल फंक्शन है, ये आइसोलेटेड ग्लोबल सेपरेट फंक्शन है, ना ही वो मेन को बिलोंग करता है ना ही वो सिंपल को बिलोंग करता है. तो ये ग्लोबल फंक्शन जो है वो आपका फ्रेंड है. फ्रेंड है मतलब आपके प्राइवेट वेरिएबल वो यूज कर पाएगा. बोलो समझाયું બધાને? यस सर. એટલે આ સિમ્પલ ટેકનિક છે. વેરી ગુડ. આ સિમ્પલ ટેકનિક છે, ये जो है वो ग्लोबल आइसोलेटेड और एक नाम इसको बोल सकते हैं. આનો मतलब શું? फंक्शन ओवरलोड. इसका मीनिंग क्या हुआ? नॉन मेंबर फंक्शन मतलब मेंबर फंक्शन मतलब हाँ कोई क्लास का. चलो सिंपल क्लास के मेंबर फंक्शन कौन से बताओ? So input show. બોલો સમજાય છે? એટલે ઓફલાઈન ક્લાસમાં સિમ્પલ ક્લાસના મેમ્બર ફંક્શન કયા? सिंपल क्लास के मेंबर कितने हैं? क्लास सिंपल है उसके अंदर कितने मेंबर्स है? टोटल मेंबर्स 3 members. 3 members. 2 के 3?
5 1 मिनट। हाँ बस आप बताइए, चलिए। सिंपल क्लास में कितने मेंबर्स हैं, 2 या 3? 3 सर। સારું, ઓનલાઈનમાં 1 મિનિટ હોલ્ડ, પોઝ 1 મિનિટ, હું ઓફલાઈનમાં આન્સર લઉં કોઈની પાસે. કેટલા જણા 2 કહો છો, 2 મેમ્બર છે? એનીબડી? સિમ્પલ ક્લાસમાં ટોટલ મેમ્બર કેટલા, 2 કે 3? 2 વાળા કોઈ છે? અચ્છા 3 વાળા કેટલા છે? 3 મેમ્બર છે એવું કેટલા કહો છો? કોઈને એવું લાગે છે અંદર 3 મેમ્બર્સ છે? ક્લાસના મેમ્બર એટલે કોણ કોણ હોય? વેરિયેબલ અને ફંક્શન્સ. ક્લાસની અંદર મેમ્બર મતલબ કોણ? વેરિયેબલ અને ફંક્શન્સ. તો સિમ્પલ ક્લાસમાં કેટલા ફંક્શન્સ અને કેટલા વેરિયેબલ છે? એક વેરિયેબલ દેખાય છે x નામનો અને 2 ફંક્શન છે, એક ઇનપુટ અને બીજું શો. એક ઇનપુટ નામ છે બીજું શો નામનું છે. શો ને આપણે બહાર ડિફાઇન તો કર્યું અહીંયા, પણ એ તો ક્લાસ જ કહેવાય ને. વેરિયેબલ કેટલે થાય ટોટલ? 3 મેમ્બર થયા. તો સિમ્પલ ક્લાસ હેઝ 3 મેમ્બર્સ. હવે ચેન્જ નામનું ફંક્શન એ ક્લાસનું પોતાનું ખરું? ના. ચેન્જ નામનું ફંક્શન છે નીચે, એ ક્લાસનું પોતાનું નથી, એટલે એને શું કહેવાય? નોન મેમ્બર ફંક્શન. ચેન્જ વાળું ફંક્શન ના તો સિમ્પલ ક્લાસમાં છે ના તો મેઇનની અંદર છે. મેઇન પોતે પણ ફંક્શન કહેવાય ને, મેઇન ઇટસેલ્ફ ઇઝ અ ફંक्शन. पर मेन क्या है? एग्जीक्यूटेबल फंक्शन है. मेन कैसा होता है? एग्जीक्यूटेबल फंक्शन. तो बाकी के सारे फंक्शन जो है ना वो नॉर्मल रेगुलर फंक्शन है. जैसे चेंज यहाँ पे लिखा है, देखो ये रहा. इस प्रोग्राम में ये फंक्शन जो है क्या ये एग्जीक्यूट हो सकता है? चेंज नाम का फंक्शन एग्जीक्यूट हो सकता है? नहीं. कॉल हो सकता है. कहां पे कॉल होगा? मेन के अंदर. तो इसका मतलब मेन क्या हुआ? एग्जीक्यूटेबल फंक्शन हुआ. उसको एग्जीक्यूट कर सकते हो, उसको रन कर सकते हो. मेरे पास क्लास सिंपल के लिए 3 मेंबर्स, 2 फंक्शन और एक वेरिएबल. ये भी चेंज नहीं है. यस बोलो. हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल. S2 ऑब्जेक्ट बनायो बराबर. હવે S2 બીજો ઓબ્જેક્ટ બનાવ્યો, એને પણ મળે. આ S2 ને ઇનપુટ કર્યો, આ S2 ને શો કર્યું અને તમે ચેન્જ ને બ્રેકેટમાં S2 મોકલો ચાલે. અને ઉપર આપણે મોકલ્યું તો હતું ચેન્જ. નીચે રહી ગયું અચ્છા સર. નીચે જતું રહ્યું ને? હા છે તો ખરી. ને તો બધા ઓબ્જેક્ટને અપ્લાય થાય. મેં ક્લાસમાં એવું લખ્યું કે ચેન્જ વાળું ફંક્શન મારું ફ્રેન્ડ છે, પછી એ ક્લાસના જેટલા ઓબ્જેક્ટ બનાવો બધાને ફ્રેન્ડશિપ મળે. ઓકે, એટલે અહીંયા લખું ચેન્જ. બસ પતી ગયું. ચલો આજનો આપનો ટોપિક ક્લિયર. 0 એરર. ચેન્જ થયા પછી વેલ્યુ કેટલી છે? ચેન્જ વેલ્યુ બતાવે છે ને અંદર. હા ચલો. પહેલો ઓબ્જેક્ટ બન્યો, વેલ્યુ આવી 55. તો શો મેથડમાં ડિસ્પ્લે થઈ, ચેન્જમાં જુઓ 56 બતાવે છે. તો આ જે 56 વેલ્યુ ડિસ્પ્લે થઈ એ તો આઇસોલેટ ફંક્શન, ગ્લોબલ ફંક્શન હતું ને, સેપરેટ ફંક્શન હતું. ઓબ્જેક્ટનો વેરિયેબલ પકડ્યો હતું. બાકી ફ્રેન્ડ ના હોત તો એક્સ વેરિયેબલની વેલ્યુ યુઝ થાત નહીં. પેલી એરર બતાવી છે ને, નોટ એક્સેસિબલ, તો નોટ એક્સેસિબલ બતાવે. ચલો આ બીજો ઓબ્જેક્ટ કયો? S2. એમાં બીજી વેલ્યુ નાખીએ આપણે. x equal to 457. વેરી ગુડ. x equal to 457 એ તો પેલું ડિસ્પ્લે શો મેથડ હતી એ છે, એ ગ્લોબલ ફંક્શન. એટલે જ્યાં જ્યાં ચેન્જ વાળું આઉટપુટ આવ્યું ને એ પેલું ગ્લોબલ ફંક્શન કોલ થયું, આઇસોલેટ ફંક્શન કોલ થયું, નોન મેમ્બર ફંક્શન કોલ થયું. એને કોઈ પણ નામથી બોલાવો તમે, ગ્લોબલ કો. ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है कि नहीं पूरे प्रोग्राम की? अगर ये लाइन ना लिखूं मैं सर तो बहुत सारी एरर चालू हो जाएगी.
तो ये लाइन जो है वो फ्रेंडशिप ग्रांट करती है, कहां से? सिंपल क्लास से। किसको देती है? चेंज फंक्शन को, बराबर ना। तो फ्रेंडशिप का मतलब यह है कि सिंपल क्लास का प्राइवेट डेटा मेंबर्स ग्लोबल फंक्शन को मिल जाएगा। ऐसा फंक्शनलिटी की जरूरत पड़ती है, ऐसी सिचुएशन आती है जब ये फीचर यूज करना पड़ता है। बोलो समझाई बद्धा ने? क्लियर है? ओके, यस Yes, sir. वेरी गुड। ले आनो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फर्स्ट वन, आप पहलू ले लो स्क्रीनशॉट। ओके डन, બંને ગ્રુપમાં ડન। તો હું સેકન્ડ પેજ ઓપન કરું, ધેટ ઇઝ સેકન્ડ પેજ, અને Done, sir. લાસ્ટ વન આ થર્ડ પેજ। થર્ડ એટલે રિમેનિંગ પાર્ટ, બરાબર છે? ચલો સમજાયું છે? તો આજે આપણે સ્ટેટિક વાળો પેલો કીવર્ડ હતો ને, સ્ટેટિક કીવર્ડ, એ આપણે કમ્પ્લીટ કર્યો કે ભાઈ સ્ટેટિક ફંક્શન હોય તો અંદર સ્ટેટિક મેમ્બર જ વપરાય, નોન સ્ટેટિક વપરાય નહીં। અને બીજો પોઈન્ટ આપણે ક્લિયર કર્યો કે ક્લાસનો કોઈ પ્રાઇવેટ ડેટા મેમ્બર હોય, કાં તો વેરિયેબલ કાં તો ફંક્શન કંઈ પણ હોય, પણ એ પ્રાઇવેટ વસ્તુ ક્લાસની બહાર ક્યાંય વપરાઈ ના શકાય। નોન મેમ્બર ફંક્શનમાં પણ ના વપરાય, ગ્લોબલમાં પણ ના વાપરી શકો, જો એને ફ્રેન્ડ બનાવો તો વાપરી શકાય, બરાબર છે? તો આજે આટલું રાખીએ।